Diels-Alder reaction is basically a type of pericyclic reaction. Pericyclic reactions हम ऐसे reactions को कहते हैं जिसमें all the bond formation, all the bond breaking takes place simultaneously in the single step through cyclic transition state. Such types of reactions are known as pericyclic reactions. Diels-Alder reaction is among those one of the pericyclic reactions. Diels-Alder reaction is basically the reaction of dienes like 1,3-butadiene with dienophile to give cyclohexene as a product. Such types of reactions takes place in a single step through cyclic transition state, so that these are pericyclic reactions, and this particular reaction is known as Diels-Alder reaction. The basic requirement of Diels-Alder reaction is that uh, when we talk about dienophile is any species that reacts with 1,3-butadiene or any dienes. Such good dienophiles are those that have electron withdrawing group attached to them. For example, there are some examples of dienophiles. In this case, all the dienophiles have some electron withdrawing groups. The basic requirement for the good dienophile is that they must have any good electron withdrawing group. Such types of dienophiles are good dienophiles. For example, when aldehydic functionality is attached with alkene or ketone functionality, ester, nitro, or cyano groups, these groups makes the dienophile good dienophile. So there are some examples of dienes. When we talk about the good diene, they must have electron donating group attached to them. So this is simple reaction of diene with dienophile to give product. For example, in this case, 1,3-butadiene react with cyclopentene to give this kind of product. Similarly, we can repeat this reaction with this kind of substrate and we get this kind of product. Similarly, this kind of anhydride that can act as dienophile, this react with diene to give this kind of product. और इस केस में हम इस तरह का रिएक्शन जो है ना वो देख सकते हैं कि ये भी एक पेरिसाइक्लिक टाइप रिएक्शन है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर हम सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल की बात करते हैं जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल में कोई रिंग नहीं है तो प्रोडक्ट में एक रिंग प्रोड्यूस होती है। अगर हम रिएक्टेंट में स्टार्टिंग मटेरियल में एक रिंग यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 रिंग्स बनेंगी। यानी हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसमें एक रिंग की एडिशन हो जाती है। सिंपल वे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसमें एक रिंग की एडिशन हो जाती है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों जो रिएक्टेंट दोनों स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ हुए हैं वो दोनों साइक्लो कंपाउंड्स हैं, दोनों में एक एक रिंग मौजूद है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में एक न्यू रिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली ये इस तरह के रिएक्शंस को हम Diels-Alder रिएक्शन का नाम देते हैं। Diels-Alder reaction, these are stereospecific reactions. Stereospecific reactions की डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये बताते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू डाइनोफाइल these Diels-Alder reactions are stereospecific reactions. For example, ये हमारे पास एक एस्टर है, सिस आइसोमर है, दिस इज एस्टर ऑफ मैलिक एसिड, डाइएस्टर ऑफ मैलिक एसिड, इसका सिस आइसोमर है। जब हम इसका 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस प्रोडक्ट है। यानी हम एज ए रिजल्ट ऑफ Diels-Alder reaction, if we start from cis isomer of ester, cis isomer of dienophile, then we get cis diene as a product. If we start with the trans isomer of डाइएस्टर ऑफ फ्यूमेरिक एसिड तो हमारे पास इसमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो उसमें जो इनकी प्रोडक्ट की एस्टर की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो ट्रांस होगी। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल एक आइसोमर सिस से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सिस प्रोडक्ट बनता है और ट्रांस से स्टार्ट करते हैं तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को हम स्टीरियो
स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डील्स-आल्टर रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू डाइनोफाइल। इसी तरीके से अगर हम डाइईन की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक डाइफिनाइल सब्स्टिट्यूटेड डाइईन है और इसका हम इस तरीके के डाइनोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो आइसोमर्स हैं डाइईन के, ये भी ट्रांस डबल बॉन्ड है, ये ट्रांस डबल बॉन्ड है। तो हम इस तरह के स्टार्टिंग मटेरियल जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास सिस डाइफिनाइल प्रोडक्ट बनता है। तो ये भी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि डील्स-आल्टर रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू डाइनोफाइल। बोथ विद रिस्पेक्ट टू डाइन डील्स-आल्टर रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक और विद रिस्पेक्ट टू डाइनोफाइल जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। तीसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम इस तरह के दोनों स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें रिंग होती है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास डाइईन है ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और जो डाइनोफाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी साइक्लो है। तो इस केस में हमारे पास दो तरह के सिस प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इनके ये जो डाई हाइड्रोजन को कंसिडर करें कि ये जो है वो एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो सिस हाइड्रोजन्स हैं और इन हाइड्रोजन्स की जो ओरिएंटेशन है इस ब्रिज पोजीशन के अपोजिट साइड पे है। यानी अगर हम हाइड्रोजन को कंसीडर करें तो हाइड्रोजन ब्रिज पोजीशन के अपोजिट साइड पे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम एक्सो प्रोडक्ट का नाम देते हैं। वाइस वर्सा हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ये जो अटैच हुआ है एनहाइड्राइड, तो इसके डाई एक्सियल पोजीशन पे अटैच हुआ है और ये जो हाइड्रोजन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इस ब्रिज पोजीशन के सिस फेशन में है। तो इस तरह के हम प्रोडक्ट को एक्सो प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट के इस तरह के बनने के चांसेस होते हैं कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं वो इन ब्रिज पोजीशन के सिस फेशन में अटैच होते हैं जो कि इस केस में ट्रांस पोजीशन में अटैच थे, या हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं वो इस ब्रिज पोजीशन के ट्रांस फेशन में अटैच हुए हैं जो प्रीवियसली सिस फेशन में अटैच हुए थे। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो ब्रिज के साथ स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं, जबकि इस केस में ये जो ब्रिज पोजीशन है इसमें सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरिक हिंड्रेंस के कोई चांसेस नहीं होते। तो इस केस में इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डील्स-आल्टर रिएक्शन होता है दैट गिव्स सेलेक्टिवली एंडो प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इस केस में ये ब्रिज पोजीशन के साथ इसकी कोई स्टीरिक हिंड्रेंस के चांसेस नहीं होते, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हम एक्सो प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए ये कह सकते हैं कि दो तरीके यूज़ कर सकते हैं कि या तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं वो इस ब्रिज पोजीशन के ट्रांसफेशन में हैं, या ये ब्रिज पोजीशन और जो सब्स्टिट्यूएंट हैं ये इसके सिस फेशन में है। सिमिलरली जब हम इस एंडो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इस केस में या तो हाइड्रोजन्स हैं जो कि स्मॉलेस्ट ग्रुप हैं इस ब्रिज पोजीशन के सिस फेशन में होते हैं, या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इसके ब्रिज पोजीशन के ट्रांसफेशन में होता है, अब एंटाई पोजीशन में होता है। इस तरह के प्रोडक्ट को हम एंडो प्रोडक्ट का नाम देते हैं।